Okay. So in previous class we have studied about different properties of Z transform. That means that properties will make Z transform a very powerful tool. Okay. So in our previous semester also we have studied about those properties. So without wasting our time, because in this semester you don't have much more problem or properties related issue regarding Z transform. So I'm just writing the problems, and one more thing, you have to prove that property. And in that case, if you have some problems or you will face some problems, then obviously I will consult with me, or I will show the proof. Okay, so yesterday time reversal property will be there. That is the time reversal become in reverse become inverse. Now differentiation property. Differentiation property. Property. So in this differentiation property, okay, according to differentiation property, if x of z is the z transform of x of n, then according to the differentiation property, z transform of n x n equal to minus z minus z ddz of xl. That is the differentiation properties. Okay, so in that case your entire z transform, whatever your entire z transform will be there, that will be differentiated with respect to z. That is differentiation properties. Okay, I am not going to the details of that property, because in previous semester also you have gone through this kind of properties. Next is convolution theorem. As we told, the convolution theorem is very much important, and it is very powerful tool for analyzing any kind of signals, basically your discrete time domain signal. That is convolution theorem or convolution properties of Z transform. So till now we are seeing, or we are considering only one signal, that is x of n. Now since convolution is there, convolution term is there, that means there are more than one signal. So suppose x of z is the z transform of x of n, and the other signal in convolution process or convolution theorem is your impulse response. So that impulse response has the z transform of hz, and that hz is nothing but the z transform of hn. Okay, then according to the convolution theorem, z transform of x of n convolution with h of n is equal to x of z and h of z multiplied with h of z. You have to remember this. Okay, now I will prove this, because this proof is very much important. Sometimes in examination, they will ask the convolution properties of Z transform. That is, prove the convolution properties of Z transform. Okay, so as we know that x of n has to be input signal, and h of n is the impulse response, and y of n is the output. Okay, so y of n is the output. So if we are going to convolve these two signals, that is you convolution of x of n and h of n, what will happen? Y of n equal to x of n convolution with h of n. So I have to find out the z transform of y of n. So it will give me
Z transform of y of n. Now since y of n equal to x of n convolution with h of n, so I can write x of n convolution with h of n, and I have to prove that one to make this statement true. Okay, so now that is z transform of x of n convolution with h of n equal to your convolution sum. What is the difference between what is the main formula of the convolution? So first we have to put the formula of transfer z transform, and we have to z, that is z transform of convolution sum of x of n and h of n. That means first we have to apply the convolution theorem, and then we have to apply the formula for the z transform. So first of all, we are going to apply x of n in convolution with h of n. So what is the formula? That is k equal to minus infinity to plus infinity x of k h of n minus k. That is the convolution formula. Now we have to do the z transform. I am going to do the z transform x of n summation convolution sum h of n. So what is z transform formula? That is n equal to minus infinity to plus infinity, एंड नाउ वट एवर इट इज, यहाँ पे जो है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट होगा, दैट इज समेशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के इंटू जेड टू द पावर माइनस एन. दैट इज द फॉर्मूला फॉर जेड ट्रांसफॉर्म. इजी फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई. नाउ रीअरेंजिंग, वी आर गोइंग टू रीअरेंज. नाउ first of all, I am writing n equal to minus infinity to plus infinity, then k equal to minus infinity to plus infinity, x of k h of n minus k z to the power minus n minus k plus k. I can write because यहाँ पे k का एक टर्म है, तो आई हैव टू रिप्रेजेंट द z इन टर्म्स ऑफ k. सो फॉर दैट पर्पस मुझे k पैरामीटर लेना है. अगर मैं एक k पैरामीटर ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे एक माइनस k पैरामीटर भी ऐड करना है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए. ठीक है. सो नाउ रीअरेंज द इक्वेशन. n equal to minus infinity to plus infinity, k equal to minus infinity to plus infinity, x of k. देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक ऑफ x ऑफ k के टर्म में और n माइनस k के टर्म में. तो z को भी मैं दो पैरामीटर में डिवाइड कर लूंगा, एक k के टर्म में, एक n माइनस k के टर्म में. सो z टू द पावर माइनस k, इस पोर्शन को z टू द पावर माइनस k ले लिया हूं, तो बाकी क्या रहेगा, माइनस n प्लस k. सो h n माइनस k z टू द पावर माइनस n प्लस के. सो माइनस के अंदर घुस गया ब्रैकेट के अंदर, तो ये n माइनस के हो जाएगा. नाउ इन दोनों को अलग कर देते हैं समेशन. यहाँ पे देखो n कौन से टर्म्स के साथ रिलेटेड है, दिस टर्म के साथ रिलेटेड है, दिस टर्म इज रिलेटेड टू n. सो इसको इस टर्म के साथ ऐड करूंगा, और यहाँ पे n का कोई टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज ये जहां पे था यहाँ पे ही प्लेस करूंगा. सो नाउ n equal to minus infinity to plus infinity h of n minus k z to the power minus n minus k multiplied with k equal to minus infinity to plus infinity x of k z to the power minus k. Now compare with the formula of z transform, that is x of z मेरा क्या लिख सकते हैं,
n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n। यहाँ पे देखो x का फंक्शन n है, z के ऊपर पावर भी नेगेटिव में n है, तो ऑब्वियसली दैट विल, अगर ये सेम रहा, ये दोनों चीज सेम रहा, देन ये जो z है ये डायरेक्ट x के अंदर घुस जाएगा, x ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम थिंग है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू z का पावर का वैल्यू, और यहाँ पे भी x ऑफ k का जो है k है, यहाँ पे भी z टू द पावर माइनस k है, सो ऑब्वियसली h ऑफ n माइनस k बिकम h ऑफ z, x ऑफ n become x of z, so that is z transform of x of n convolution with h of n, x of n convolution with h of n is equal to z transform of, since x को हम यहाँ पे पहले लिखे हैं तो इसको लिखेंगे x z transform of x of n individually and z transform of h of n, that is h of z, that is proved। ठीक है, तो ये प्रूफ एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्सेवल रिलेशन, पार्सेवल्स रिलेशन, नेक्स्ट इज पार्सेवल्स रिलेशन। जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म में पार्सेवल्स रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म में पार्सेवल रिलेशन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सीक्वेंस विद इट्स complex conjugate signal। Suppose if x of 1n is the signal, then and x of 2n is another signal. So Parseval relation is nothing but x of 1n and complex conjugate of this signal, that is x2 star, that is complex conjugate, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिखाता है तुम्हारा पार्सेवल्स रिलेशन, कि एक मेरा इनपुट सिग्नल और दूसरे इनपुट सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो उसका मल्टीप्लिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द पार्सेवल्स थ्योरम, ठीक है, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1n multiplied with x2 complex conjugate n equal to 1 by 2 pi j, that is complex conjugate है, कंट्रोल इंटीग्रेशन x1v x2 1 by v star, that is complex conjugate v inverse dv, that is Parseval's relation। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ वी विल प्रूव दिस, तो सिंपली प्रूफ ऑफ पार्सेवल्स थ्योरम, प्रूफ। सो प्रूफ में क्या है, लेट x1n is the input signal, x2n is the complex conjugate of इनपुट सिग्नल x2n। ठीक है, नाउ y of n is x1n multiplied with x2 star n। now according to the z transform, ठीक है, y of z, that is z transform of y of n is equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity, that is y of n का वैल्यू ये है, तो x1n x2n
into z to the power minus n according to the complex theorem. ठीक है, कॉम्प्लेक्स z ट्रांसफॉर्म. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द z ट्रांसफॉर्म. नाउ टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम व्हिच इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स और हायर एजुकेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ पे तुम लोग का प्रूफ दिया हुआ है बट प्रूफ इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? y ऑफ z इक्वल टू 1/2πj कंट्रोल इंटीग्रेशन पहला सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू v, और दूसरा सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विथ रेस्पेक्ट टू z एंड v स्टार इंटू v माइनस 1 dv. ये याद रखना. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. ठीक है, you have to remember this, and whenever you are going for higher education you will find how this complex convolution theorem will be derived from the Lenz theorem. ठीक है, another series. now z, यहाँ पे z इक्वल टू 1 देते हैं. z इक्वल टू 1 बिकॉज मेरा थ्योरम में क्या है? यहाँ पे 1/v स्टार है, तो z का वैल्यू 1 होगा, तभी ये 1/4 z इक्वल टू 1 x टू z स्टार v स्टार becomes x टू स्टार 1/v स्टार. ये बनेगा तभी फॉर z इक्वल टू 1. सो हम z इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करते हैं. नाउ z इक्वल टू 1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा? इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन. ठीक है, कहाँ गए? इन दिस इक्वेशन, this one, in this equation. So z transform of y of n equal to n equal to minus infinity to plus n infinity x1n into x2 n square. Again, according to the complex convolution theorem, this equal to this much. So I can write this entire sequence will be replaced by this equation. So now we are writing the entire equation, that is 1/2πj control integral x1v x2 star 1/v star v inverse dv. So that is nothing but your yz. ओके, और yz के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? yz इक्वल टू दिस मच. सो yz के बदले हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1n into x2 star n, and it is only applicable for z equal to 1. Always keep in mind. ठीक है, तो ये हो गया पार्सेवल्स थ्योरम. पार्सेवल थ्योरम तो मेरा सजेशन है इसको डेरिवेशन में मत जाना, अगर एग्जाम पे है जैसा लिखा है वैसा ही उसको कॉपी पेस्ट मारना. बहुत सारा कम चीज में मैं बोलता हूँ कॉपी पेस्ट मारो या रट्टा मारो. ठीक है, पार्सेवल थ्योरम इज वन ऑफ द, बिकॉज तुम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तुम लोग का है आउट ऑफ सिलेबस कॉन्वोल्यूशन में. ठीक है, तो इसमें उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे लेंस सीरीज चाहिए. लेंस सीरीज लेने के लिए मुझे लेंस थ्योरम चाहिए व्हिच इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, सो जस्ट डू द कॉपी पेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज
your equation. We are going to find out the Z transform using equations. Okay. After that we are going for inverse Z transform. ये Z transform हो गया, inverse Z transform करेंगे. पहले एक एग्जाम्पल वन, ठीक है. So it is given x of n equal to 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n given. Find x of z. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? So let it x of n, ठीक है. As per our requirement, x of n is given, that is 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n and un. So इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसको z ट्रांसफॉर्म में दो तो z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x ऑफ z. x ऑफ z का फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n. So x of n z to the power minus n. ठीक है. Now write down the value of x of n. n equal to minus infinity to plus infinity 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n un z to the power minus n. Now see, un is there. That is, un has the value from 0 to 1, 0 to infinity. Un, unit impulse. ठीक है. So 0 to infinite. So now n equal to 0 to infinite 3 into 3 to the power n minus 4 into 2 to the power n z to the power minus n. ओके. नाउ इसको हम अलग करेंगे. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट 3 into 3 to the power n z to the power minus n, or sorry minus n, minus n equal to 0 to infinite 4 into 2 to the power n z to the power minus n. ठीक है. Now what will be the values? देखो यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म 3 कांस्टेंट टर्म है जो रिलेट नहीं करता है n को. सो 3 बाहर हो जाएगा. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट 3 टू द पावर n है, z टू द पावर माइनस n है, तो 3z इनवर्स n माइनस 4 निकाल दो बाहर. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट 4z इनवर्स, सॉरी 2 होगा यहाँ पे. So 2 z inverse to the power n. So in previous class I have shown you a formula, that is r to the power n, n equal to minus infinite to plus infinite, that is 1 by 1 minus r. ऐसा ही कुछ था ना. ऐसे था ना. ये सुन लो. ये सुन लो. ऐसा ही कुछ था ना. यस सर. नहीं ऐसा नहीं था. 0 टू इन्फिनाइट था. 0 टू इन्फिनाइट था. ठीक है. ये था. सो नाउ यहाँ पे देखो, इसको अगर हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अगर हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r टू दी पावर n 0 से इन्फिनाइट. इसको भी अगर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r टू दी पावर n 0 टू इन्फिनाइट. सो डायरेक्ट पुट द 1 by 1 minus r, मतलब 1 minus 3z inverse minus 4 into 1 by 1 minus 2z inverse. Now solve the equation. That is 3z inverse. That is 3z
z minus 3 minus 4z z minus 2. So x of z equal to 3z z minus 3 minus 4z z minus 2. So ये हो गया z ट्रांसफॉर्म. आंसर कंप्लीट. यस और नो. आंसर कंप्लीट. आंसर कंप्लीट हुआ. कोई रिप्लाई नहीं है. आंसर कंप्लीट हुआ. Did I complete the answer? Or something is there which has to be calculated? बोलो. ROC निकालना है सर. Yes, very good. So we have to find out the ROC. ये हो गया 50% ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है कहीं पे आरओसी निकालने नहीं बोला है, बट आई हैव टू फाइंड आउट द आरओसी टू मेंशन इट्स रेंज. तो आरओसी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था नीचे वाला पोर्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कर दो. ठीक है. मॉड नीचे वाला पोर्शन. तो यहाँ पे दो पोर्शन है. तो फर्स्ट वन इज मॉड z माइनस 3 mod z minus 3 greater than 0. दैट मीन्स 0 अगर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड होगा. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 0 से ज्यादा वैल्यू लेना है. तो mod 3 अगर z माइनस 0 है तो mod z ग्रेटर देन 3 है. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज mod z minus 2 greater than 0. So mod z minus 2 है तो mod z greater than 2. So ROC of x of z is mod z greater than 3 and mod z greater than 2. तो 2 और 3 के बाहर वो रेंज नहीं रहेगी. ठीक है. सो दैट इज द इक्वेशन. तो यहां पे देखो जो z ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और ग्रेटर देन 3 है, तो ये ग्रेटर देन 2 भी ऑलरेडी ग्रेटर देन 3 है. जो ग्रेटर देन 3 है वो ही ग्रेटर देन 2 होगा. अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड आई कैन राइट 5 इज ग्रेटर देन 3, सो मैं दोनों में से एक ही कंक्लूजन निकाल सकता हूं. 5 इज ग्रेटर देन 3. दैट मीन्स जो 3 से ज्यादा है ऑब्वियसली 2 से ज्यादा है. तो अगर दोनों सेम स्लॉट में दैट इज ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 है तो हम मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे. तो आरओसी इज एक आरओसी ऑफ x of z is mod z greater than 3. क्योंकि दो इक्वेशन लिखना इज नॉट ए गुड थिंग कि z mod z 2 से भी बड़ा है, mod z 3 से भी बड़ा है. तो हम कह सकते हैं mod z 3 से बड़ा है. ठीक है. लाइक द एज ऑफ आवर फादर इज ग्रेटर देन अस. ठीक है. एंड द एज ऑफ आवर फादर इज ग्रेटर देन आवर यंगर ब्रदर. सो आई कैन से एज ऑफ द फादर इज ग्रेटर देन मी, बिकॉज अगर मुझसे बड़ा एज हुआ देन ही हैज ऑल्सो मोर एज देन माई यंगर ब्रदर. ठीक है. सो दैट इज z ग्रेटर देन 3 और z ग्रेटर देन 2 दोनों को ही हम एक साथ लिख सकते हैं z ग्रेटर देन 3. ठीक है. सो दिस इज द आरओसी. सो हम लोग आंसर का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? दैट इज x of z equal to 3z by z minus 3 minus 4z z minus 2
ROC Z greater than 3. That is the actual format of writing the Z transform. ठीक है, that is the answer. Okay. Next, तुम लोगों का एक असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट फ्रॉम दिस क्लास. असाइनमेंट x of n equal to 1 by 3 n minus 1 u of n minus 1. Find x of z. यहाँ पे भी ROC हम मेंशन नहीं किए, बट यू हैव टू फाइंड आउट द ROC. ठीक है. नाउ यहां पे देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो. ये 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर जिसका पावर n है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है. 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर 2 है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो अगर ऐसा मुझे दिया गया है z ट्रांसफॉर्म, तो उसका एकदम शॉर्टकट उपाय है, दैट इज इफ x of n is equal to n into a to the power n u n, तब हम क्या करेंगे, n is a constant, a is a constant. ठीक है. तो उसके लिए क्या करेंगे, सो दैट विल गिव यू x of z equal to summation minus infinity to plus infinity n a to the power n, ठीक है, un z to the power minus n. ओके. सो नाउ un है तो ये माइनस इंफिनिटी तक नहीं रहेगा, ये n इक्वल टू 0 से इंफिनाइट होगा, n a to the power n z to the power minus n. ओके. नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा n के साथ मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स n एक टर्म है. ठीक है, n एक टर्म है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो जिसका पावर्स है, जिसमें पावर है, दैट इज a z टू द पावर माइनस 1. ठीक है, ये जो पावर है a z टू द पावर माइनस 1 एंड 1 माइनस a, यही वैल्यू यहां पे पुट करना है, -1 होल स्क्वायर. ये टर्मोलॉजी याद रखना. ठीक है. अगर इसी टाइप का सपोज तुमको दे दिया है 2 3 टू द पावर 2 un, इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो, तो क्या होगा, इसका z ट्रांसफॉर्म तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज जिसमें पावर है दैट इज 3 इंटू जेड इनवर्स 1 माइनस 3 जेड इनवर्स स्क्वायर डायरेक्ट. ठीक है, ये याद रखना, ये एक ट्रिक है, दैट इज ट्रिक. ठीक है. और एक है a टू दी पावर n. ठीक है, ये हो गया 1. ये शॉर्टकट मेथड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एमसीक्यूज में ये सब होता है. और एक है a टू दी पावर n un, दैट इज x ऑफ n. तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ z n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a टू दी पावर n u टू दी पावर n z टू दी पावर माइनस n. सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 टू इंफिनाइट a टू दी पावर n एंड z टू दी पावर माइनस n. सो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 1 माइनस
a z टू द पावर -1, a z टू द पावर -1। अगर मुझे सवाल पूछा गया 3 टू द पावर n un, इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो, तो क्या होगा? दैट इज 1/1 माइनस ये 3 है, सो 3 यहाँ पे पुट होगा, दैट इज 3 z इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ, ये इक्वेशन में भी सेम थिंग हुआ। देखो आ गया। हाँ, ये इक्वेशन 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n है यहाँ पे, 3 टू द पावर n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/1 माइनस 3 है तो 3 z इनवर्स, और इसका कांस्टेंट वैल्यू 3 है तो इंटू 3। यहाँ पे भी 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर n, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2, 2 z इनवर्स, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है, सो 4, तो इन दोनों को माइनस कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है कि तुम उसको प्रोसेस वाइज सॉल्व करो इन केस ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, ये शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड होगा, या तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे तुम्हारा इतना टाइम नहीं है जेड ट्रांसफॉर्म निकालना। ठीक है, और दूसरा एक लास्ट ट्रिक है, ये कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन में पूछता है, दैट इज यू ऑफ एन, एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन। सो एक्स ऑफ एन अगर यू ऑफ एन मिला तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यू ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। सो ये क्या होगा? n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट, un का वैल्यू क्या है? 1 है, सो सिंपली z टू द पावर माइनस n। सो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/1 माइनस, यहाँ पे un मतलब 1 टू द पावर 1n। ठीक है, ये वैल्यू है, तो 1 3 के जैसे लिख रहे थे 1, तो यहाँ पे 1 बैठेगा, 1 इंटू जेड टू द पावर -1, सो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 माइनस जेड। ये सब चीज याद रखना थोड़ा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिक है, ज्यादा जेड कन्वोल्यूशन जेड ट्रांसफॉर्म हमको करना ही नहीं। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। ये सर सब, हाँ बोलो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन द जेड ट्रांसफॉर्म, हम लोग देख रहे हैं पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, सो पोल्स एंड जीरोस निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कहेंगे जीरो है वो फंक्शन, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ जेड for which the value of the equation becomes 0। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक वैल्यू है x ऑफ z, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू है न्यूमरेटर पार्ट, दैट इज n ऑफ z एंड डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा? न्यूमरेटर पार्ट अगर ये है तो x ऑफ z का वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके वजह से 0 होगा? कौन सा वैल्यू को 0 करेंगे, कौन सा वैल्यू हम वैल्यू लेंगे, किसका वैल्यू ऐसा लेंगे जिसके वजह से ये x ऑफ z 0 होगा? दैट इज ऑलवेज न्यूमरेटर पार्ट 0, दैट इज 0 बाय समथिंग, 0 by something always gives us 0, so numerator part will be 0। so for zeros
calculation n of z equal to 0. And similarly poles are the value of z for which the value of the equation becomes infinity. So अगर x of z इक्वल टू न्यूमरेटर पार्ट z है एंड डिनोमिनेटर पार्ट z है, तो किसके वैल्यू चेंज करने से इसका इनफाइनाइट होगा? हम लोग पता है समथिंग divided by 0 is always gives you infinite. So d of z is equal to 0. So for poles calculation, d of z should be 0. So if I will write an equation in the terms of poles and 0, then हम equation को कैसे लिख सकते हैं? equation, कोई भी इक्वेशन इज इक्वल टू जीरोस बाय पोल्स। ठीक है, ये याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है, कौन सा पोल होगा कौन सा जीरो होगा। ऊपर जीरो बैठाने से मेरा इक्वेशन जीरो आ जाएगा तो उसको हम जीरो कहेंगे, नीचे जीरो बैठाने से मेरा इक्वेशन इनफाइनाइट आ जाएगा तो उसको हम पोल्स कहेंगे। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट सम पोल्स एंड जीरोस। This type of questions basically ask equation example. So let it y of n minus 3 by 4 y of n minus 1 plus 1 by 8 y of n minus 2 equal to x of n minus x of n minus 1. So इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में। So again I am writing y of n minus 3 by 4 y of n minus 1 plus 1 by 8 y of n minus 2 equal to x of n minus x of n minus 1. Now y of n एक साइड में आएगा एंड x ऑफ n एक साइड में जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? दैट इज y ऑफ z माइनस 3 by 4 y of n minus 1, so z to the power minus 1 into y of z plus 1 by 8 z n minus 2, so z to the power minus 2 y of z equal to, ठीक है, y of x of n x of z माइनस n minus 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? z to the power minus 1 x of z। सो इसका फॉर्मूला क्या है? x of n माइनस m का z ट्रांसफॉर्म होगा तुम्हारा z टू दी पावर माइनस m x of z। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा z ट्रांसफॉर्म ये आया। नाउ y ऑफ z और x ऑफ z को अलग करते हैं। y ऑफ z इक्वल y ऑफ z 1 minus 3 by 4 z inverse plus 1 by 8 z to the power minus 2 equal to x of z 1 minus z to the power minus 1। ठीक है, नाउ अब इसको x ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट रखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन में दो दो अलग इक्वेशन लगाना पड़ेगा। x ऑफ z बाय y ऑफ z बाय x ऑफ z इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स
1 minus 3 by 4 z to the power minus 1 plus 1 by 8 z to the power minus 2, ये लिखेंगे। नाउ पोल्स एंड जीरोस निकालना है। तो फर्स्ट पोल्स, पोल्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, इस पार्ट को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 3 बाई 4 जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई 8 जेड टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेट करना पड़ेगा। सो नाउ क्या आएगा टर्म, दैट इज 1 माइनस 3 बाई 4 जेड प्लस 1 बाई 8 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स दैट इज 8z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ ये टर्म आउट हो जाएगा, 8z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। So middle term factor 8z square minus 4z minus 2z plus 1 equal to 0. So now it will becomes 4z, that is 2z minus 1 and minus 2z minus 1 0. So it will become 2z minus 1 4z minus 1 equal to 0. So what will be the value of z? Z इक्वल टू, एक है 1/2 और एक है z इक्वल टू 1/4, दैट इज टू वैल्यूज आर फॉर पोल्स। एंड जीरोस, जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जीरोस में ऊपर वाला पोर्शन क्या है, दैट इज 1 माइनस जेड इनवर्स। सो 1 माइनस z to the power minus 1 equal to 0. So z to the power minus 1, ठीक है। सो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। सो जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई जेड, ठीक है। सो एक हो जाएगा, जेड का वैल्यू 0, ठीक है। सो जेड का वैल्यू 1, सो 1 इज द zeros. Okay, so now this will be your poles and zeros. So it has poles at, it has poles at z equal to 1/4 and 1/2 and zeros at z equal to 1. So now how I have to plot in diagram. So देखो पोल्स के लिए क्या है, I will have to cross, ठीक है, and z equal to 1. So z equal to 1 0, that is 0 1, z equal to 1 यहाँ पे 0, ठीक है। एंड पोल्स के लिए क्या है, क्रॉस सिंबल देंगे। तो 1/4 दैट मींस 1/4 एंड 1/2, half 1/2, that is poles and that is zeros. And now सेंटर में मैं, मेरा z ट्रांसफॉर्म का मेन फंडा क्या है, सेंटर में भी एक बात होना चाहिए, सेंटर ओरिजिन एट 0। सो 0 को हम एज ए ओरिजिन पकड़ेंगे, ओरिजिन में भी एक 0 पकड़ेंगे, बिकॉज 0 से चालू हो रहा है ओरिजिन। तो यहाँ पे 0 में 1 एंड 0 लिखेंगे, 0 एट 0, 0 मैंडेटरी है क्योंकि z ट्रांसफॉर्म का आरओसी, आरओसी के लिए मुझे पोल्स एंड 0 चाहिए। तो z ट्रांसफॉर्म का आरओसी किस में है, आरओसी विल बी सिचुएटेड एट, आरओसी इज द रिंग हैविंग ओरिजिन एट 0। तो 0 में उसका वैल्यू 0 आएगा।
Just a minute. Hello? Am I audible? Am I audible? Okay, actually there is a disconnection of network. So now am I audible? Sir. Okay, okay. Yes, sir. So now this is the zero and pools. Okay. So now your assignment number 2 from this chapter is, or this topic is असाइनमेंट. असाइनमेंट एक जगह पे करके रखना, ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस जो कोरोना का वेरिएंट आया है, ठीक है, अगर बाई चांस यूनिवर्सिटी ये घोषित घोषणा कर दिया कि इस बार भी तुम लोग ऑनलाइन या इंटरनल असेसमेंट के थ्रू एग्जामिनेशन का मार्क्स जाएगा, देन यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट. ठीक है. ये सब असाइनमेंट में प्रेशर अभी प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि मुझे असाइनमेंट देना ही है. ठीक है. मैं बोलूंगा कि जितना भी असाइनमेंट्स है उसको एक जगह पे लिखो एंड सॉल्व करके रख दो. जिस टाइम यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, मैं उस टाइम तुमको असाइनमेंट मांगूंगा तुमसे, और वो बहुत शॉर्ट लिमिटेड के लिए होगा, ड्यूरेशन शॉर्ट होगा. कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं बोलूंगा कि असाइनमेंट सबमिट करो, तब मुझे ये मत बोलना सर टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा टाइम मिलेगा. ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ. सो असाइनमेंट यहाँ से एक असाइनमेंट है, y ऑफ n इक्वल टू 5/6 y ऑफ n माइनस 1 माइनस 1/6 n माइनस 2 माइनस प्लस x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1. फाइंड पोल्स एंड जीरोस. ठीक है. ये एक्चुअली वन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है. ठीक है. So you have to find out the poles and zeros of this equation. Okay. Now stability factor, stability criteria. Since हर एक सिस्टम का stability criteria है, Z ट्रांसफॉर्म का भी stability criteria. ठीक है. तो इसका stability criteria क्या है? Mod h of Z, that is impulse response का, must be less than equal to summation of n equal to 0 to infinite h of n mod that must be less than infinite. मतलब इसका infinite में कोई बाउंड्री नहीं होगी, infinite के अंदर ही है जो भी है. ठीक है. सो ये बाउंड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया याद रखना कि एक z ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस is less than equal to summation of impulse response from 0 to infinite, which is must be less than infinite. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द स्टेबिलिटी. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी हम कह सकते हैं कि एक जेड ट्रांसफॉर्म सिस्टम या जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल स्टेबल सिग्नल है. अदरवाइज वी कांट से दैट द सिस्टम इज स्टेबल वन. ठीक है. नाउ relation between Fourier transform and Z transform, or otherwise I can say relation between two transforms, or since we know about two transforms, that is one is Fourier transform and another one is Laplace transform.
लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो पहले हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। इसका रिलेशनशिप क्या है? तो सपोज h of n is the impulse response of system, ठीक है, and h of z is the z transform of h of n. Okay, so now again h of z can be represented in the terms of n equal to minus infinity to infinity h of n z to the power minus n. ये हो गया z transform. Again from the previous classes we know that z equal to r e to the power j omega. ठीक है, so instead of z I can write h of r e to the power j omega equals to n equal to minus infinity to plus infinity h of n एंड z के जगह हम लिखेंगे r e टू द पावर j ओमेगा माइनस n। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ओके, ये हो गया z ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेट h of n is the impulse response. So Fourier transform of h of n equal to, that is summation of n equal to minus infinity to plus infinity h of n e to the power j omega n. So इसको हम लिख सकते हैं h of e to the power j omega equal to n equal to minus infinity to plus infinity h of n e to the power j omega n. ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। ना देखो, ये दोनों रिलेशन को इक्वेट करो, ये दोनों रिलेशन को इक्वेट करो, क्या देख पाते हैं? क्या देख पाते हैं? इक्वेट करो, क्या आता है? क्या आएगा? दैट इज यहाँ पे माइनस होगा, हाँ माइनस माइनस ठीक है, तो यहाँ पे माइनस। तो देखो क्या आएगा इसमें, रिलेशन अगर निकालेंगे दोनों सीक्वेंस का ट्रांसफॉर्म का, तो क्या रिलेशन आएगा?
Any idea? That is h of e to the power j omega equal to h of r e to the power j omega is equal when r equal to 1. ठीक है? So that means z का वैल्यू हो जाएगा, that means that is z equal to e to the power j omega. So now we can say h of e to the power j omega is equal to h of z at z equal to e to the power j omega. That means where r equal to 1. So that is the statement, that is the relationship between Fourier transform and Z transform. Now another is Laplace transform. ठीक है? Laplace transform. Laplace transform and Z transform relationship. ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है? So Laplace transform is for using t scale. ठीक है? So Laplace transform is always dependent on t states. तो Laplace transform हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x of s equal to 0 to infinite x of t e to the power minus st dt. ओके, और इसको अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म सैंपल ले लेते हैं, दैट इज सैंपल ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म x स्टार s, दैट इज ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड फॉर डिस्क्रीट बिकॉज हम लोग z ट्रांसफॉर्म निकाले डिस्क्रीट सिग्नल का. x of s इक्वल टू इंटीग्रेशन विल बिकम समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट, t becomes nt सैंपल हो गया, e to the power t becomes nt, so n t and s. ठीक है? और पहले हम तुम सिर्फ t का सफिक्स में कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए s माइनस s इंटू एन टी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट x ऑफ एन टी e to the power minus nts. So ये हो गया Laplace transform for discrete time signal. ठीक है? Now इसको हम Z transform से रिलेट करेंगे. Now Z equal to r e j omega. So x of r e j omega equal to n equal to राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड दिया हुआ है, सो नो नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड 0 टू इनफिनिट x ऑफ n z टू द पावर माइनस. ठीक है? सो r e टू द पावर j ओमेगा माइनस n. ठीक है? नाउ x ऑफ z के बदले हम r j ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा ले लिए. ठीक है? तो ये हो गया रिलेशन. नाउ इसके साथ ये कब इक्वेट होगा? देखो इसके साथ ये कब इक्वेट होगा? इसके साथ ये कब इक्वेट होगा? जब मेरा यहां पे देखो इस टर्म को, ठीक है, हम इस टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर n, सॉरी e टू दी पावर t s माइनस n लिख सकते हैं. सो यहाँ पे r e j ओमेगा n है, फॉर z इक्वल टू r e j ओमेगा n. अगर हम z का वैल्यू ले लेते हैं e टू दी पावर ts, तब ये क्या हो जाएगा इक्वेशन? x ऑफ
e to the power ts equal to n equal to 0 to infinite x of n एंड ये एंटर टर्म को हम ले लेते हैं एक्स ऑफ एन। ठीक है, सो ये आ जाएगा तुम्हारा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन ई टू द पावर टी एस माइनस एन। ठीक है, सो ये तुम्हारा आ जाएगा एक्स ऑफ एन ई टू द पावर टी एस माइनस एन। सो देखो यहाँ पे देखो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन इक्वेशन सेम है। ठीक है, सो इट इज z Laplace transform, that is x of x star of s is equal to x of z when z equal to e to the power st or ts, whatever. This is the relation between Laplace transform and z transform. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, दैट इज एक्स ऑफ जेड दिया रहेगा, फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड आउट एक्स ऑफ एन। ओके, सो टिल नाउ एनी क्वेरीज फ्रॉम योर एंड? इफ नो, raise your hand and leave the class. If no, raise your hand and leave the class. If you don't have doubts, raise your hand and leave the class.